रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो आज भी हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे एंड देखते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है हम सबके लिए। लेट्स सी। आज चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम का श्लोक 4 आया है। अधिभूतां स्करो भवा पुरुषाश्च धिदैवताम् अधियज्ञनो हम ईवत्रा देहे देहा मृतं वरा। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called आदिभूता। ये श्लोक जिंदगी में 10,000 बार आ चुका है बट अभी भी आ रहा है। मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। जो फिजिकल नेचर है वो हमेशा ही बदल रहा है। इट इज कॉल्ड व्हाट? आदिभूता, द मटीरियल मैनिफेस्टेशन, the universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and the moon, is called Adi Daiva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yagna, the Lord of Sacrifice. भगवान जो है वो हर एक चीज़ को sacrifice कर रहे हैं। इसीलिए जब हम भगवान कृष्ण के साथ में जुड़ जाते हैं तो ग्रेजुअली हम हर एक चीज़ से डिटैच होने लग जाते हैं, हर एक चीज़ को सैक्रिफाइस करने लग जाते हैं और हर एक चीज़ से हमारी अटैचमेंट कम होने लग जाती है। क्योंकि हम जब जिसके बारे में सोचते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, ग्रेजुअली हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, ग्रेजुअली हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। सो हम धीरे धीरे करके लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस की एनर्जी में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो हम सब के हृदय में स्थित है। बस ज़रूरी है तो उनको जगाने की, उनसे जुड़ करके उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट करने की। The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. The physical nature is called Adi Bhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Supreme Lord, which includes all the demigods and their different planets, is called Adi Daiva, and present in the body along with the individual soul is the super soul, a plenary representation of Lord Krishna. The super soul is called the Paramatma or Adi Yagna and is situated in the heart. The word Eva is particularly important in the context of the verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The super soul, the supreme personality of Godhead seated beside the individual soul, is the witness of the individual's soul's activities and is source of the soul's various types of consciousness. The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witness his activities. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service to the Lord. The gigantic universal form of the Lord, called Adi Daiva, is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as Super Soul. So, the neophyte is advised to contemplate the universal form or Virat Purusa, whose legs are considered the lowest planets, whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी इंडिविजुअल जन्म लेता है दुनिया में, कुछ दिन बाद वो फिर बदल ट्रांसफॉर्म होकर के छोटे से धीरे धीरे बड़े होकर के फिर वो मृत्यु हो जाती है। इन सारे फिजिकल चीज़ों को आदि भूता बोला जाता है। ये सभी जन्म लेते हैं और कुछ टाइम बाद ये सारे का मृत्यु हो जाता है। जो सुप्रीम लॉर्ड के बहुत सारे डेमिगॉड्स या बहुत सारे प्लैनेट्स जो बने हुए हैं वो आदि दैवा बोला गया है, जो सुप्रीम लॉर्ड के साथ में हमेशा के लिए ही प्रेजेंट रहते हैं। और जो सुप्रीम लॉर्ड है, जिनको परमात्मा बोलते हैं या आदि यज्ञ बोलते हैं, वो हमारे हृदय में स्थित है। ईवा जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में, बिकॉज बाय दिस वर्ड लॉर्ड ये बताना चाहते हैं कि द परमात्मा इज नॉट डिफरेंट from him. The super soul, the supreme personality of Godhead, seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities. जो सुपर सोल है ना, वो इंडिविजुअल सोल के बगल में बैठ के उसके सारे एक्टिविटीज़ को देख रहा है एंड इज़ द सोर्स ऑफ द सोल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इस और वो सोल के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस को भी क्या बोलते हैं, सोर्स मतलब एनर्जाइज कर रहा है या एनर्जी दे रहा है। सोल के हर फॉर्म ऑफ जो कॉन्शियसनेस है उसको एनर्जाइज कर रहा है। द सुपर सोल गिव्स द इंडिविजुअल सोल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट फ्रीली एंड विटनेस हिज activities.
तो सुपर सोल जो है वो इंडिविजुअल सोल को अपने सारे कृत्यों को अच्छे से देख करके, विटनेस करके उसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसको विटनेस कर सको। द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑटोमेटिकली बिकम क्लैरिफाइड फॉर द प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ग्रेजुअली जब हम बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस को करते हैं तो हमारी सारी जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लैरिफाइड हो जाता है, या हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो बनना है, नहीं बनना है, कैसे बनना है, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमें मिल जाती है। द जाइजेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कॉल आदि दैवा इज कंटेम्पलेटेड बाय द न्योफाइट। मतलब जो यहाँ पे न्योफाइट का अर्थ हम बोल सकते हैं कि जो एकदम छोटे लेवल के जो प्रेयर कर रहे हैं, जो एकदम भी उतना क्या बोलते हैं ना, एडवांस्ड नहीं है। सो द जाइजेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान के जो बहुत बड़ा रूप है उसको आदि दैवा बोला जा रहा है, इज कंटेम्पलेटेड बाय द न्योफाइट हु कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम लॉर्ड इन हिज मैनिफेस्टेशन एज सुपर सोल। वही न्योफाइट जो है वो सुपर सोल नाम से बताते हैं, क्योंकि वो उनको पहुंच नहीं सकते। उन सारे न्योफाइट को एडवाइस किया जाता है कि वो भगवान के विराट स्वरूप को जो है उसको पूजे। उसमें भगवान के जो लेग्स है वो लोअर प्लैनेट्स है, जो आंखें हैं वो सन एंड मून है, एंड उनका जो हेड है उसमें अपर प्लानिटरी सिस्टम्स है। सो भगवान के विराट स्वरूप को पूजने के बारे में बताया गया है। हमारे बारे में बताया गया है, हम जो दुनिया में आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। जो डिफरेंट भगवान, मतलब इस दुनिया को शॉर्ट में बताया गया है कि इसमें कितने सारे फॉर्म्स है, कितने सारे अंश है, उसको बताया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे। अगर आप लोग को ये भगवद गीता की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती है, या कहीं पे भी लगता है कि ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है कुछ भी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके लिख सकते हो, ताकि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को दोबारा समझाऊँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।